Hello, my name is Sanjeev and we are going to talk about alternating EMF. This is the first segment in the chapter of AC circuits or alternating current. For this, we need to know Faraday's law of electromagnetic induction. And in this case, we'll just start with an example of a conducting coil. So let's say we have a conducting coil, and when I say conducting, that means it can carry current, but as of right now, there is no current in the coil. Right now, there is no cell connected to the coil. It's a simple rectangular coil kept on its own. Okay, खुद में रखा हुआ है coil, no battery, no chemical cell actually, तो कोई current run नहीं कर रहा. However, this coil is free to rotate about its axis. तो हम लोगों ने यहाँ पे axis देके रखा. There is some mechanism, let's say there is a axle system because of which we can rotate it about this axis. And the angular speed of rotation is denoted by omega. Hopefully याद होगा आप लोग को angular speed. For those who don't recall, angular speed is defined as rate of change of angular position. In any circular motion or rotation problem, we definitely go for omega equals to d theta upon dt. अगर किसी को याद ना हो तो प्लीज रीड अप ऑन द एंगुलर वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन. ठीक है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बारे में जरा पढ़ लो. ठीक है, बट एज ऑफ राइट नाउ यू विल ओनली नीड टू यूज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी. ये आइडिया पता होना चाहिए. वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, तो ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड. सो यूजिंग सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म आई एम प्रोबेबली रोटेटिंग द कॉइल विथ सम कांस्टेंट ओमेगा, विथ सम uniform omega. Now this entire coil is immersed or placed inside a uniform magnetic field. So let's say I have uniform magnetic field. So all the field lines are going to be parallel. Okay. So I've tried to make a 3D representation. कि coil थोड़ा tilted है and field lines जा रहे हैं. All the field lines are parallel. Now in this particular situation, I've tried to draw my diagram such that the magnetic field lines are perpendicular to the axis. Okay, the coil is free to rotate. The plane of the coil will keep on turning, but जो axis of rotation है and जो magnetic field है, they are mutually perpendicular. मैंने उसको ऐसे रखा है सिस्टम को. In fact, this particular design, this is the core idea of AC generator. ठीक है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे या आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, एंड एक सेपरेट टॉपिक होता है मोटर. तो जनरेटर का ये फंडामेंटल एक कोर आइडिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये जो डिजाइन है. ठीक है, ऑब्वियसली एक्चुअल मैकेनिज्म और डिफरेंट होता है. सम ऑफ यू माइट रिकॉल देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लिप रिंग्स. ठीक है, इन अ एसी जनरेटर, फिर कार्बन ब्रशेस, बहुत कुछ रहता है. तो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट राइट नाउ. लेकिन बस ये बात मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो सेटअप है, इट इज अ कोर प्रिंसिपल और कोर आइडिया, मैकेनिकल आइडिया बिहाइंड अ एसी जनरेटर. इसके बारे में और बात करेंगे. नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं इस सेटअप को किसी एक जनरल टाइम पे देखता हूं, तो लेट्स से एट सम जनरल टाइम आई लुक एट द सेटअप. ओके, तो ऑब्वियसली द प्लेन ऑफ द कॉइल विल बी इंक्लाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट? नाउ लेट मी रिमूव माय वीडियो. ओके, जस्ट वेट. So coming back at a general time, your magnetic field looks like this. It's horizontal. And in this particular diagram, जो diagram मैं अब कर रहा हूँ, in this particular diagram, I am looking down the axis. Okay, to be more exact, I am looking from somewhere here. Okay, from this location. Okay, the region I marked by this red marker. Okay, so my eye is somewhere here. I'm looking down the axis and looking at this entire setup. Okay, so what it would look like. So let's say this is a magnetic field line. Obviously there are many other parallel field lines, but again I'm just drawing one of them. And then there is this coil. So I will be able to look at the arm PQ of the coil. Okay, if I'm looking from this side, okay, here is my eye, let's say. So I'm looking at the arm PQ of the coil. The like edges, the vertex R and S will be somewhere behind. Okay, will be somewhere behind P and Q. So this is the coil which I'm looking at a particular moment of time.
Now we'll talk about Faraday's law. So you'd recall Faraday's law requires the calculation of magnetic flux, and then we go for rate of change of flux, right? So flux calculation के लिए सबसे पहली बात क्या है? We require the area vector. You'd recall area vector is always drawn perpendicular to the local surface. So for the surface of the coil, the surface will be this region, right? This region. Okay, this region of the coil, उसके perpendicular हमको area vector लेना. So in the second diagram, I could redraw it like this. I have an area vector perpendicular to the surface of the coil. Now let's say at this instant, the area vector and the magnetic field make some angle with each other. Let's say that angle is theta. Okay, so theta is the angle between magnetic field and area vector, and the entire system is obviously rotating. Again, omega is my angular speed of rotation. एक चीज यहां से आप लोगों को क्लियर है, probably as the coil rotates, the area vector will also turn. The theta angle would change. अगर मैं फ्लक्स के बारे में बात करता हूं, the mathematical formula flux, तो it's integral of B dot d. This is a fundamental idea of flux, fundamental formula for flux. ये हमेशा मैं बताता हूं बच्चों को कि डायरेक्टली B dot A मत कर देना. You should check in any general problem whether the field is uniform or not. So fundamental formula for magnetic flux is integral of B dot dA. Now in this problem, मैं ये जो इंटीग्रल करूंगा, this surface integral is being performed over the surface of the coil, this surface. But over that surface, the magnetic field is uniform. So in this integral, in this particular integral, the B vector can be taken out of the integration. It's a constant vector. For every location on the coil, the B vector is same. It's uniform everywhere. So you can actually take out B vector out of the integration. Once you do that, the equation will become somewhat like this. How so? Once B vector goes out of the integration, you will be left with B vector dot product with integral of dA vector. Integral of dA vector in this case will give you the total area vector of the coil as shown here. एक बार डिटेल्स में अगर बात कर दूं तो एरिया वेक्टर जब हम लोग dA लिखते हैं, it refers to an elementary portion. So there is some elementary portion of the coil and there is an area vector associated with it. Okay. Now there are many similar patches on the coil surface, all having their area vectors parallel. सबको ऐड करोगे तो you'll get the net area vector. Again, if anybody has difficulty following this, you should read up on flux. Okay, back in electrostatics. पढ़िएगा, clear हो जाएगा. So once you get integral of dA vector, that becomes simply the total area vector. So we have B dot A. You could have avoided these two steps. अब directly B dot A लिख सकते हो board exams में और in general. But be careful. This holds only if the magnetic field is uniform. Next, B dot A will be simplified as BA cos theta. Simple यहाँ पे B and A क्या बन गया? Magnitudes. Cos theta, the angle between them. So flux का expression यह है. Now we'll be moving on. आप लोग probably running notes लेते रहना और keep on pausing the video and complete your notes. So step by step मैंने 3 steps लिखे and I simplified the expression of flux to BA cos theta. As I said, theta is variable. As the coil rotates, theta would vary. So flux भी variable है. Whenever you get a variable flux, तभी Faraday's law apply किया जाता, right? तो I have redrawn the same diagram on the right hand side. Oh, sorry, left hand side. तो proceed करते हैं. How do you further simplify? तो before we further simplify this expression or perform a derivative, थोड़ा सा मैं थीटा के बारे में बात कर लेता हूं और अदर ओमेगा के बारे में. ओमेगा डिफाइन कैसे करते हैं? एज ए सेड अर्लियर, डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर स्पीड. थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है. एंगुलर पोजीशन, डी थीटा इज कॉल्ड द एलिमेंट्री और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है विथ टाइम, कोई चीज अगर टाइम के साथ कांस्टेंट होता है तो उसको कहते हैं स्टेडी. सो इफ ओमेगा इज स्टेडी, in that case you could write omega as del theta upon del t, as in you don't have to go for a derivative. ठीक है, जरूरी नहीं है. डेरिवेटिव से जो आंसर आएगा del theta upon del t से आंसर सेम आएगा, given that omega is uniform.
दिस इज अ बेसिक आइडिया जो आप लोग प्रोबेबली मोशन के टाइम से पिक किए होगे कि अगर आप कभी लार्ज टाइम इंटरवल पे लिखते हो किसी रेशियो को, दैट गिव्स यू द एवरेज वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे पता चलता है? बाय परफॉर्मिंग अ डेरिवेटिव। द एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर जनरली डिफरेंट, बट दे कैन बी इक्वल अगर वो पर्टिकुलर रेशियो कांस्टेंट विथ टाइम, if it is steady. So anyways, in this particular problem, omega could be written as del theta upon del t, where del theta will be theta final minus theta initial by time interval. Moving on, हम कहते हैं कि let's say t equals to 0. जब ये रोटेशन शुरू हुआ था, मैंने जब देखना शुरू किया था, ठीक है, तो let's say t equals to 0, we assume a very nice case कि जो इनिशियल एंगल है let's say that's 0. इसका मतलब सिचुएशन देखने में कैसा है? बी वेक्टर जिधर है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, दे आर पैरेलल एंड द कॉइल इज वर्टिकल, राइट? क्योंकि एरिया वेक्टर तो कॉइल सरफेस के परपेंडिकुलर है. सो इफ इनिशियल एंगल इज 0, आई कुड से दैट द कॉइल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. अब जैसे थोड़ी देर बाद ये रोटेट करेगा, आफ्टर सम टाइम द थीटा वुड सिंपली बिकम ओमेगा टी, राइट? थीटा का वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगा. यू कुड इजीली अंडरस्टैंड, थीटा इनिशियल 0 हो गया, डेल टी टाइम इंटरवल को मैं अगर सिंपली टी लिख लिया, सो थीटा फाइनल विल बिकम ओमेगा इनटू टाइम. आई नो दिस इज वेरी सिली, दिस मस्ट बी वेरी ऑब्वियस फॉर सम पीपल, बट अगर किसी को दिक्कत है तो लेट मी लाइक हाईलाइट दिस आउट. ओके, सो ओनली व्हेन द इनिशियल पोजीशन इज एज शोन, एज इन द कॉइल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, only if the initial position is as shown, आप थीटा को इजीली लिख सकते हो एज ओमेगा टी. नहीं तो एक्चुअली थीटा का एक्सप्रेशन ओमेगा टी प्लस समथिंग आएगा, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, प्लस 5 आ जाएगा, तो जो भी है. सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी. नाउ अब मैं अगर फ्लक्स के एक्सप्रेशन में इसको पुट करता हूं तो फ्लक्स एक्सप्रेशन विल बिकम बी ए कॉस ओमेगा टी. यहां से फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिख रहा है, तो फैराडेज लॉ अप्लाई करते हैं. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स associated with a coil, there will be an induced EMF given by minus d phi upon dt. तो ये टाइम वैरिंग फ्लक्स है, हम लोग यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं इंड्यूस्ड EMF. सो मूविंग ऑन, कम ऑन, माइनस डी फाई अपॉन dt. अब जिन लोगों को डेरिवेटिव पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता अगेन रीड अपॉन इट. डेरिवेटिव करोगे तो बी एंड ए दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है. फ्लक्स के एक्सप्रेशन में बी एंड ए आर द मैग्नीट्यूड्स, तो दीज आर कांस्टेंट, ठीक है, दीज टू. तो डेरिवेटिव में दे विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन ओमेगा टी, बट टाइम का एक कोएफिशिएंट है ओमेगा, तो दैट विल बी क्लोन्ड आउट ऑफ द डेरिवेटिव. होपफुली इतना डेरिवेटिव्स आपको पता है. सो आवर एक्सप्रेशन कम्स डाउन टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. नाउ कुछ चीजें इसके बारे में पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये प्रेजेंट कहां पे होता है? तो जो बातें मैं अभी बोलने वाला हूं, these have या must have been covered back in the chapter of electromagnetic induction, but I am repeating it all over again. The induced EMF is actually distributed in the loop, unlike a battery EMF जैसे कि localized रहता है, ठीक है. जो भी सेल है, हम लोग जनरली अगर केमिकल बैटरी का बात करते हैं, so there is this general idea that the EMF is localized. It's present within that system of electrodes and electrolyte. But unlike battery or cell EMF, induced EMF distributed रहता है. It is present in a portion or in the entire loop itself. वो distributed होता है. तो अगर आप induced EMF को दिखाना चाहते हो in general, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा कि वो distributed है. तो अगर मैं एक डायग्राम करूं, ठीक है, कि लेट्स से ये मेरा लूप है PQRS, एंड इफ आई वांट टू शो द इंड्यूस्ड EMF, इट वुड बी कंसेप्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एंटायर लूप. अब किस ब्रांच में कितना है दैट कैन बी कैलकुलेटेड. हो सकता है किसी ब्रांच में 0 हो, EMF हो ही ना, EMF जो है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में, बट इन जनरल द EMF इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, अगर तुम एक AC जनरेटर का बात करते हो, ठीक है, तो AC जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल था, बचपन में भी पढ़ोगे, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया इतना देर,
ठीक है, मैथमेटिकली ये काइंड ऑफ इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी स्टार्ट विथ अ मैकेनिकल रोटेशन ऑफ अ लूप. सो वी स्टार्ट विथ अ मैकेनिकल इनपुट, बट अल्टीमेटली आई एम गेटिंग एन EMF. An EMF is an electrical term. So kind of with the help of a mechanical rotation, I'm able to obtain an electrical output. So this is one of the basic ideas behind the concept of AC generator. Got it? तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये AC जनरेटर के साथ लिंक्ड भी है. Now, अगर लेट से हमारे लूप में एक सिंगल टर्न नहीं होता, I mean this is called a single turn. ठीक है, एक ही प्लेन में. If there was multiple turns, if there was n turns, तो डायग्राम देखने में कुछ ऐसा होगा. मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. ओके, सो आई हैव मल्टीपल टर्न्स स्टैक्ड वन अबव द अदर, वेरी क्लोज, नॉट लाइक लुकिंग लाइक दिस बट प्रीटी क्लोज. तो अगर मल्टीपल टर्न्स हैं एंड इन दिस केस इफ आई कैलकुलेट द EMF, ठीक है, एंड फ्लक्स, तो बेसिकली एक n का टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा. वाई सो? सिंपल बात है, ये जो टर्न्स है ना, दे आर इन सीरीज. इफ यू लुक एट इट, दे आर इन सीरीज. अगर इसको पूरे चीज को अगर आप रोटेट करते हो, यू रोटेट दिस एंटायर सेटअप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम हो रहा है बट मल्टीपल टर्न्स हैं. तो ये जो हमने अभी भी डिस्कस किया, ये हर एक टर्न में होगा, इन ईच एंड एवरी टर्न. हर टर्न सीरीज में है तो सीरीज में EMF एड अप हो जाएगा. हम एक बार लिखते हैं, इफ आई राइट द फ्लक्स एक्सप्रेशन इट विल बी सेम BA cos omega t बट n टाइम्स. ठीक है, ओके, फ्लक्स में n टाइम्स आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि BA cos omega t इज अ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न. n टर्न्स रहेंगे, यू विल एड अप. ओके, अगेन यहां पे ये डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, द डायरेक्शन इन विच द कॉइल इज टर्निंग. एज इन ऑब्वियसली यहां पे मैंने जितनी बार टर्न किया है, दे आर इन द सेम सीक्वेंस. ठीक है, somebody might come up with a idea कि सर लेट से मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस. ओके, मैं स्टार्ट किया, आई एम नॉट श्योर कितने लोग फॉलो कर पाओगे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में देयर आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड लाइक दिस, कि जहां पे हम लोग जब कॉइल लेते हैं ना, लेट से ये कॉइल है, उसको हम लोग फिर रोटेट करवा के वापस लेके जाते हैं. ठीक है, तो उन सब केसेस में फ्लक्स का साइन ध्यान देना पड़ता है. ऐसे नहीं कि आप हमेशा एड अप ही कर दोगे. द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. सो यहां पे इतना नहीं सोचना है, यहां पे चीजें सिंपल है. द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग ऑफ ईच लूप इज सेम, सो यू सिंपली एड अप द नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट गिव्स यू द नेट फ्लक्स. एंड मैथमेटिकली अगर सेम तरह से तुम इसका डेरिवेटिव करते तो NBA कांस्टेंट बाहर गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर चला गया, माइनस d∅/dt में माइनस पहले से रहता, तो सब कुछ सेम होता. ठीक है, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. तो आई हैव जम्प्ड सम स्टेप्स. ओके, आप खुद कीजिएगा इस पार्ट को. यू वुड रियलाइज कि यहां पे फिर से पिछले बार की तरह एक्सप्रेशन है, बट देयर इज एन एक्स्ट्रा n टर्म. गॉट इट? अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो NBA वाला टर्म है, इसको कंबाइन करके E0 लिख देते हैं. ठीक है, NBA ओमेगा, सॉरी, ये जो पूरा टर्म है, जो सामने में एक कांस्टेंट टर्म है. फॉर अ स्टेडी एंगुलर स्पीड ओमेगा इज अ कांस्टेंट. एक बार आपने कॉइल को डिजाइन कर दिया, n इज अ कांस्टेंट, तो ये सब को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. तो दीज टर्म्स आर ग्रुप्ड अंडर E0. ओके, बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ द साइन टर्म. साइन टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको मैं E0 लिखता हूं. तो एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो E0 है, या E0 साइन ओमेगा टी इस बार जो आ रहा है, ये एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है? अलोंग द एंटायर लूप, ऑल द n टर्म्स, एंड दे आर इन सीरीज. तो सीरीज में है, इसीलिए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है. ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था ऑल्टरनेटिंग EMF का. अब इस पे बहुत कुछ बात कर रहे हैं, एज इन ग्राफ, एज इन व्हाई इज इट ऑल्टरनेटिंग, फिर साइनसॉइडल के बारे में कुछ और डिटेल्स में बताना है. बट एज फॉर दिस सेगमेंट यही हमारा मेन डिस्कशन था. एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, द इंड्यूस्ड EMF इज गोइंग टू बी E0 sin omega t. दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. डू वेल टू रिमेंबर दिस, इसको याद रख सकते हो, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेगमेंट.